हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राजक्ता मुंडे। होप आप सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। In this video, I'm not going to discuss any concept or topic or amendment or anything. A lot of students they come to me and they have an issue mainly in PGBP, capital gain, or when we talk of the full-fledged questions that are given in the chapter number 8 of CA intermodule, or if I talk of final, the assessment of entities topic that is given in the chapter number 12, that they are able to remember or learn the provisions, but they are not able to solve the questions properly. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पीजीपीपी की बात लेकर के चलूं, तो हमें याद तो है कि 10,000 से ऊपर की कैश एक्सपेंसेस हैं तो वो 48(3) में डिसअलाउ होंगे, या अगर हमने रिलेटेड पार्टी को पे मार्केट वैल्यू से ज्यादा का पेमेंट किया तो 48(2) में डिसअलाउंस अट्रैक्ट होगा। वी नो द प्रोविजंस, बट व्हेन एवरीथिंग कम्स एट वन प्लेस, जब सारे अलाउंसेस, सारे डिसअलाउंसेस, सारी प्रोविजंस को एक साथ अप्लाई करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, तब हम कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू सॉल्व वन क्वेश्चन ऑफ पीजीबीपी विच इज अ फुल फ्लेजेड क्वेश्चन, दैट इज you are supposed to compute the income taxable under PGBP by considering all the allowances, disallowances from your module only, not outside that, which will help you understand how to read a question, how to interpret a question, how to understand which points are important while reading, and then how to present it in the answers. Because what happens is, whenever you are studying for our like CA examinations, whether it is inter or final, सिर्फ provision याद रखना काफी नहीं है, उन्हें प्रॉपरली सही समय पे सही जगह पर अप्लाई करते आना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो और हमारा जो क्वेश्चन होता है उसका हर एक एक पार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर यू कैन से विच आर हिडन एडजस्टमेंट्स इन द क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिखा होता है मिस्टर राहुल एज 63 ईयर्स अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड देन दे गिव अ होल क्वेश्चन। अब होता क्या है, मिस्टर राहुल एज 63 हम भूल जाते हैं शुरुआत में पढ़ के, एंड में टैक्स कैलकुलेशन करना होता है, हम रेगुलर स्लैब लगा करके क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाते हैं। ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हमारी होती है जिस वजह से हमारे एग्जामिनेशन में मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, इन पर भी फोकस करना बहुत जरूरी है। एंड कंसिडरिंग जिस टाइम में हम अभी बैठे हैं, वी आर वेरी क्लोज टू आवर अटेम्प्ट्स, इट्स मार्च, so it is very important to understand where to focus, where to use and channelize our energies. Okay, so let us discuss. I'll just solve the question and you just need to understand how to solve a question when that particular point is asked in examination. Why am I starting with PGBP? Because PGBP is a topic जिस पे question आने के chances सबसे ज्यादा है, whether it is inter or CA final. Adjustments of PGBP are very very important, and after that I will be giving some questions of capital gain and set off, carry forward, etc. If you have any specific point, if any one of you has any issue कि हमें इस वाली चीज में दिक्कत आती है, तो feel free to discuss. I'll be sharing the videos on that as well. So let us discuss. Mr. Raju, a manufacturer, now there has to be something. Okay, we just need to understand. हो सकता है इसका काम क्वेश्चन में ना हो, लेकिन हमें ध्यान रखना है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज को डेप्रिसिएशन मिलता है एडिशनल वाला, ठीक है। सो ऐसे हमें छोटी छोटी चीजें पकड़नी है। मैन्युफैक्चरर एट चेन्नई गिव्स द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट ऑफ 31st March 2023। ये आपको उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग दिया है, ठीक है। इस पे हम बाद में आते हैं, पहले एडजस्टमेंट्स देखते हैं। Following are the further information relating to financial year 22-23. Administrative charges include 46,000 paid as commission to brother of the assessee. Commission amount at the market rate is 36,000. So that is 48(2) का disallowance market rate है ना, से ज्यादा हमने पे किया है, पे मार्केट वैल्यू से ज्यादा हमने पे किया है, excess would be disallowed paid to a relative. Assessee paid 33,000 in cash to a transport carrier on 29th of December. Now, also one more important thing which is to be kept in mind, I'll talk in between so that you are able to understand how should be the question flowing, because चीजें जो मेरे दिमाग में चल रही है वो आपको पता होनी चाहिए। See, जब आप कोई भी एडजस्टमेंट पढ़ो ना, तो उस प्रोविजन को याद करो और उस प्रोविजन को पहले दिमाग में लेकर के आओ, फिर उसके एडजस्टमेंट पे विचार करो। नॉर्मली क्या होता है कि हम फटाफट कि अरे 33,000 इन कैश डिसअलाउंस हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। नो, दिस शुड नॉट बी डन. Read the adjustment, think about the provision, and then decide what adjustment is to be given. See, कैसे? Paid 33,000 in cash to a transport carrier. This amount is included in manufacturing expenses.
assume that the TDS provisions are not applicable, मतलब आपको 40A का डिसअलावेंस नहीं देना है। जो TDS नॉट डिडक्शन और डिडक्शन के बाद नॉट पेड वाला जो डिसअलावेंस होता है उसको उन्होंने इग्नोर करने को बोला कि भाई तुम मान लो कि TDS तो लगना ही नहीं था, ठीक है। अब आई होप मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये तो समझ आ गया होगा कि ये किस पॉइंट की बात हो रही है। ये पॉइंट की बात हो रही है 40A3 की, है ना। अब assessee paid 33,000 in cash to a transport carrier on 29th of December. Now 33,000 paid in cash, तो 48 तो समझ आया। लेकिन अगर हम ध्यान से उस सेक्शन को याद करें तो उसमें नॉर्मल लिमिट है 10,000 एंड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स के केस में वो लिमिट हो जाती है 35,000। सो इस केस में कोई डिसअलावेंस अट्रैक्ट ही नहीं होगा। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स वुड डू दिस मिस्टेक, दिस इज वेरी कॉमन। वी आर नॉट सपोज टू बी लाइक इट्स ओके, बट इट्स important if you pay attention to these small points, क्योंकि एक एक एडजस्टमेंट से हमारे क्वेश्चन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन में इनकम निकालने के बाद टैक्स कैलकुलेशन है तो अगर इनकम गलत आएगी तो ऑब्वियसली टैक्स कैलकुलेशन भी गलत आएगा। प्लस स्टेप मार्किंग होती है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो एटलीस्ट हम जितने ज्यादा से ज्यादा एडजस्टमेंट सही करेंगे, ठीक है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, कुछ भी मिस्टेक हुई, बट एटलीस्ट अगर हमारे एडजस्टमेंट सही है तो विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। सो वी नीड टू स्कोर मोर। ओके, द क्वेश्चन ऑलवेज, इट्स नॉट नेसेसरी कि क्वेश्चन हमेशा 100% करेक्ट हो, बिकॉज वो प्रैक्टिकली हो भी सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। एग्जाम है, हम प्रेशर में होते हैं, गलतियां हो जाती है, इट्स वेरी नॉर्मल। एवरी पर्सन कैन नॉट स्कोर 100 आउट ऑफ 100। इनफैक्ट इट्स वेरी वेरी लेस पॉसिबिलिटी कि हम हर क्वेश्चन 100% सही करके आए, बट वी कैन aim to score the maximum. If it is a 10 mark question, we can aim to score 8 or 9, कि हम ऐसी गलतियां ना करें जो हमें आती हैं चीजें, ठीक है। चलिए, a sum of 4,000 per month was paid as salary to a staff throughout the year and this has not been recorded in the books of accounts. Okay, अब इसका दो assumptions लगाए जा सकते हैं। या तो इसको आप मिस्टेक मान सकते हो, एरर मान सकते हो कि हम भूल गए थे, तो इसको अलाउ कर सकते हैं। और या फिर ये नॉट बीन रिकॉर्डेड को आप अनरिकॉर्डेड एक्सपेंडिचर मान सकते हो। तो फिर इसका ट्रीटमेंट आपका अनरिकॉर्डेड वाला, जो हम अनडिस्क्लोज्ड इनकम और जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं अनडिस्क्लोज्ड एक्सपेंडिचर, उस तरीके से होगा। विल सी उन्होंने सॉल्यूशन में क्या किया है, बट ऑब्वियसली बोथ आर कंसिडर्ड करेक्ट। बैंक टर्म लोन इंटरेस्ट एक्चुअली पेड अप टू 31st March was 20,000. This goes to 43B. बैंक लोन इंटरेस्ट है ना, विच इज एक्चुअली पेड 43B, वो जितना पे हुआ होगा उतना ही आपको अलाउ होगा। एंड द बैलेंस वाज पेड इन November 23। लेकिन जब हम बैंक लोन इंटरेस्ट की बात करते हैं 43B क्या कहता है, अगेन रिमेंबर द प्रोविजन, दिस शुड बी योर वे फॉर एवरी एडजस्टमेंट। पहले सेक्शन याद करो, प्रोविजन याद करो और फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट बताओ। 43B बोलता है एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट है, अगर आपने लोन लिया है उसका, तो it has to be deducted only if it is actually paid on or before the due date of filing of return under section 139(1). अगर हमने 139(1) की ड्यू डेट तक पे कर दिया है तो आपको अलाउ होगा। 31st March तक कितना पे हुआ है इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बचा हुआ अगर हमने अप्रैल में पे कर दिया तो भी चलेगा। सो दिस हैज टू बी केप्ट इन माइंड। हाउसिंग लोन प्रिंसिपल रीपेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 50,000, तो ये तो अपना पीजीपीपी से रिलेटेड नहीं है। एंड इट रिलेट्स टू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय हिम फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। Interest on housing loan was 23,000. Housing loan was taken from Canara Bank. These amounts were not dealt in the P&L account given below. So it is of related to residential. ये P&L में आना भी नहीं चाहिए। Depreciation allowable under the Act is to be computed on the basis of the following information. Okay. Compute the total income of Mr. Raju for the assessment year, assuming he has not opted for 115 BAC. तो पहले तो हम पीजीबीपी की बात कर लेते हैं, फिर ये जो उन्होंने एडजस्टमेंट दिया है हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड और डिडक्शन से रिलेटेड, इस पे चलेंगे क्योंकि छोटा सा पॉइंट है, एक आधा पॉइंट है। इसके पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज, पहले एक बार पीएनएल को देख लेते हैं। इफ देर आर सम आइटम्स विच आर टू बी एडजस्टेड देन दैट हैज टू बी पेड अटेंशन। सेल्स ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ठीक है, पीएनएल का ये आइटम है। जीपी ठीक है। डिविडेंड विल गो अंडर income under the head other sources. By income from agriculture, again that has to be exempted. Income from agriculture is not to be included in total income. इस क्वेश्चन में हमको टैक्स नहीं निकालना है ना, सिर्फ इनकम निकालनी है, ठीक है। अगर टैक्स निकालना होता तो फिर वो एग्रीकल्चरल इनकम का रिबेट और वो सब पूरा कैलकुलेट होता, बट ठीक है, सिर्फ टोटल इनकम निकालनी है तो वी कैन इग्नोर दैट। ओपनिंग स्टॉक, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस एंड एक्सपेंसेस में से नीचे एक एडजस्टमेंट था। तो एग्जाम में जब आप ऐसे देखो पीएनएल, एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर मार्क कर दो पेंसिल से, या ऐसे छोटा सा निशान, ज्यादा तो हम लोग को अलाउड नहीं होता है उस पर कुछ ज्यादा क्वेश्चन पेपर पे लिखना, बट जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिमेम्बरिंग।
या आपके आंसर शीट पे कहीं पर आप पेंसिल से लिख लो कि इस एडजस्टमेंट में है, क्योंकि देयर इज एन एडजस्टमेंट रिगार्डिंग द मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, है ना। सो इसीलिए ध्यान रखने के लिए कि इसको हमें चेक करना है। जीपी आ गया। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के बारे में भी उन्होंने बोला हुआ है ना। तो ये सब पॉइंट्स हमें बाद में याद नहीं रहते हैं, वो नॉर्मल है, ह्यूमन है। अब उस पर ध्यान कैसे रखना वो सीखना है, ठीक है। देन एसजीएसटी पेनल्टी, जीएसटी पेड, ओके। जनरल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन बैंक 60,000, उसमें से कितना पे हुआ है वो उन्होंने नीचे लिख दिया है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ है, लेकिन ये अकाउंट्स के हिसाब से हो सकता है, हमको हमारे सेक्शन 32 के हिसाब से डेप्रिसिएशन अलाउ करना है, और उन्होंने एसेट की इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब चलो शुरुआत करें। हाउ विल यू राइट? See, first of all, you have to write the name of the assessee, computation of total income of Mr. So and so for the assessment year 23, 24, 24, 25, 25, 26, whatever. Whichever assessment year you are calculating, this has to be the heading. Whatever you are computing should come at the top. Computation of tax payable, computation of, because it should be presentable. देखने वाले को, चेक करने वाले को इजीली समझ में आना चाहिए आप क्या बता रहे हो, उसे ढूंढना ना पड़े, आप खुद दिखाओ कि ये हमने ये कैलकुलेट किया है, हमारा ये वर्किंग नोट यहाँ पर है, क्रॉस रेफरेंसिंग, एवरीथिंग शुड बी as systematic as possible. Okay, so practice that way. Now this you made your internal columns, external columns, all those things. Then when you are solving PGBP, what do you start the question with? You start the question with the net profit that is given, net profit as per profit and loss account, and then you adjust the items. I have given the revision video of P&L, PGBP as well. So if you or any one of you wants to just revise the whole chapter in a quick review, like 1 or 2 hours, you can definitely check that video. I'll share the link along with this as well. उसमें मैंने पूरा फॉर्मेट भी आपको एक्सप्लेन किया है. Net profit as per P&L. So whatever the net profit is, what is the net profit? See, we can check. 5 lakhs is the net profit as per the profit and loss account. So I have written it 5 lakhs. Okay. Then you will be adding some items and you will be subtracting some items. Add होते हैं वो expenses, add होंगे वो expenses which are disallowed, which are already debited in the profit and loss account, but they are disallowed from the expense P&L. And दूसरी चीज कौन सी ऐड करी जाती है? दूसरी चीज ऐड करी जाती है इनकम that is taxable under PGBP but not shown in P&L. Normally ये adjustments कम होते हैं, क्वेश्चन में इसके एडजस्टमेंट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके एडजस्टमेंट्स नॉर्मली थोड़े से कम होते हैं. लेस एक्सपेंसेस अलाउड, एक्सपेंसेस अलाउड जो कि P&L में शो नहीं हुए हैं, एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट डेबिटेड टू P&L. एंड नेक्स्ट इज इनकम्स नॉट टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी. जैसे हमने देखा डिविडेंड और एग्रीकल्चरल इनकम वगैरह, वो सब हम क्या कर देंगे? माइनस. अब एक एक एडजस्टमेंट को हम देखते जाते हैं और हम उनको सॉल्यूशन भी साथ साथ देखते जाएंगे कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन हुआ है ना. चलो, administrative charges include 46,000 paid as commission, so 10,000 has to be disallowed. First of all, excess commission paid disallowed under 40A2. That's it. इतना लिखना काफी है. अगर कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करके बतानी है तो पुट अ वर्किंग नोट. डोंट include a lot of things on the main solution. Okay, if there has to be some calculation done, जैसे depreciation है, it's better if you do not compute it in the internal column. Just give a working note, go to the working note, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, वहां से फिगर उठा करके आंसर में लेके आओ और प्रॉपर रेफरेंसिंग दो कि ये हमारा वर्किंग नोट 3 है. नीचे वर्किंग नोट्स सिस्टमैटिकली, जैसे ही आपका फॉर्मेट खत्म होता है, जैसे यहाँ पर आपका फॉर्मेट खत्म हुआ, देन गिव द वर्किंग नोट्स, राइट डाउन वर्किंग नोट 1, calculation of depreciation, whatever is the working note for, underline, then systematically asset की opening value, purchase. एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए आंसर लिखने का, है ना, चेक करने वाले को भी परेशानी नहीं हो, और अपन ने अगर कोई चीज सही लिखी है तो वो सामने से दिख जाए ना, अननेसेसरी मार्क्स क्यों हम छोड़े. ठीक है. सो दैट इज द फर्स्ट एडजस्टमेंट, सिंपल, वेरी सिंपल. 10,000 वुड बी डिसअलाउड. असेसी पेड 33,000 इन कैश. अब देखो, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं देना है, या तो आप इसको फेस पे शो कर दो कि नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड और क्यों, वो रीजन, या फिर आप नीचे वर्किंग नोट्स में लिख सकते हो अलग से. फेस पे कुछ भी मत शो करो, वर्किंग नोट में लिखो द एडजस्टमेंट नंबर 2 in which cash is paid 33,000 to transport operator in cash will not be adjusted because it is allowable and because the limit is 35,000 और 48,3 करके आप पूरा एक्सप्लेन कर दो. इन्होंने कैसे किया है, इन्होंने यहीं पे लिख दिया है, ये भी चलेगा. अदरवाइज आप इसको यहां से टोटली हटा दो,
और नीचे लिख दो अलग से वर्किंग नोट में एक पॉइंट डाल करके कि डिसअलाउ नहीं होगा भले ही कैश में है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की केस में लिमिट इज 35,000। ओके, चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमको क्या दिया हुआ है, 4,000 में यू कैन ट्रीट इट एनीवेज। अगर आप इसको एक गलती मानते हो, इफ यू ट्रीट इट एज अ मिस्टेक, देन जस्ट गिव एन अलाउंस, माइनस कर दो। क्या करोगे, लेस एक्सपेंडिचर नॉट रिकॉर्डेड एरनसली, 4,000 इंटू 12, 48,000 एक्सपेंस मान करके माइनस कर दोगे लेस में, ठीक है। अगर इसको आप अनरिकॉर्डेड मानते हो, क्योंकि ये अनडिस्क्लोज है, इनकम में ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट के साथ ऐड होगा। क्या लिखोगे आप इसको, ट्रीटिंग इट एज अनडिस्क्लोज इनकम। और क्योंकि अनडिस्क्लोज है तो टैक्स भी वो 60% और 25% और 4%, इफ यू रिमेंबर 78% इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स, उससे टैक्स होगा 115 BBE में। हमारे नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स से नहीं कंसिडर किया जाएगा 115 BBE, जो हमने अभी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। सैलरी पेड टू स्टाफ assuming that the expenditure is unexplained, again it's your choice, you can go other way around as well, it is correct, totally correct। okay, चलें आगे बढ़ें। नेक्स्ट इज बैंक लोन इंटरेस्ट एक्चुअली पेड वाज 20,000। अब हमारा टोटल इंटरेस्ट है 20,000 ही पे हुआ है, तो 40 हमारा डिसअलाउ हो जाएगा। अगेन बैंक लोन इंटरेस्ट आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। बी वेरी स्पेसिफिक, यू डोंट नीड टू राइट द होल स्टोरी, जस्ट बी वेरी स्पेसिफिक। पेड इन नवंबर, ये वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपकी ड्यू डेट जुलाई है, चाहे सितंबर है, चाहे अक्टूबर है, जो भी आपकी ड्यू डेट है, whatever is your due date of filing return, I'm just giving you an example, there are no due every month does not have a due date, but I'm just giving an example कि whatever is your due date, नवंबर के पहले तो सारी ड्यू डेट्स खत्म हो जाती है, तो नवंबर के तो बाद पे हुआ है, मतलब हमने ड्यू डेट, भले ही हम पे ऑडिट की रिक्वायरमेंट हो, भले ही हम पे ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं हो, हमने ड्यू डेट के तो बाद ही पे किया है, तो फिर हमको डिसअलाउंस अट्रैक्ट होगा। अगर यही नवंबर की जगह अप्रैल लिखा होता, तो अगेन मेरी ड्यू डेट जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, कुछ भी है, अप्रैल के तो बाद ही है, तो हम अलाउ कर लेंगे। ओके, सो दैट डज नॉट डिपेंड दैट वेदर इट इज पेड इन 31st of March or not, so that you have written। अगेन स्टेट जीएसटी पेनल्टी disallowed, again we know penalties are not allowed from your PGBP income। इस वाले को मैंने छोड़ ही दिया है, क्योंकि इसका पीजीबीपी से कोई लेना देना नहीं है। अब डेप्रीसिएशन पे आ जाते हैं। क्या बोला है, देखो WDV माइनस डेप्रीसिएशन, मतलब ये बुक वैल्यू दे रखा है 11,90,000। एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर एंड टोटल एडिशंस वर 4 lakhs। इग्नोर एडिशनल, अच्छा चलो इन्होंने एडिशनल डेप्रीसिएशन को इग्नोर ही करने को बोल दिया है, ठीक है। नहीं तो हमारा तो ध्यान गया था कि मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, तो हम तो निकालने वाले थे, बट क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली इग्नोर करने को बोला है, तो ठीक है, वील इग्नोर, बट वी नो that if it is a manufacturing entity we have to calculate additional depreciation। now 2 lakhs का एडिशन है मोर देन 180 डेज का, एंड टोटल एडिशन है, मतलब 2 लाख पे 7.5% से लगेगा और 2 लाख पे 15%। इसका एक प्रॉपर वर्किंग नोट देना है। देखिए इन्होंने किस तरीके से शो किया, डेप्रिसिएशन एज पर वर्किंग नोट। चलो अब देखो वर्किंग नोट बनाया है, पुराना ओपनिंग पे पूरा 15%, प्लस जो 2 लाख हमने मोर देन 180 डेज यूज किया है उस पे पूरा 15%, और लास्ट में जो हमारा 2 लाख लेस देन 180 डेज यूज हुआ है उस पे 7.5% से हमारा क्या कैलकुलेट होगा, डेप्रीसिएशन। सो ये पूरा हमने यहाँ पर शो कर दिया है ना। नाउ डेप्रीसिएशन हमने डिडक्ट करेंगे, जो बुक्स में डेप्रीसिएशन है दैट हैज टू बी एडेड बैक। whatever is the depreciation, 2 lakhs is to be added because this is as per accounting, ठीक है। सो हमने एक एक एडजस्टमेंट को डिस्कस किया। चलो फटाफट से इसको शो भी कर देते हैं आपके लिए कि किस तरीके से शो होगा। वैसे काफी हद तक आपको क्लैरिटी आ गई होगी, बट लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड। ऐड करेंगे, आई एम राइटिंग डाउन सम पॉइंट्स। सो ऐड हमने क्या क्या चीजें करी, जस्ट टेक 1-2 एग्जांपल्स। वी हैड डिसअलाउड द एक्सपेंडिचर ऑफ 48.2, 48.3 का अलाउंस नहीं है, 43B का डिसअलाउंस है, अनरिकॉर्डेड सैलरी का डिसअलाउंस है, सारे ऐड वाले एक साथ, सारे लेस वाले एक साथ। अगेन अब इसमें बच्चों को ये दिक्कत आती है कि मैम सॉल्व करते करते अगर लेस वाला पहले आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिखो इस तरीके से, ऐड लिखो, 6-7 लाइन छोड़ो, नीचे लिखो लेस, और जब जो एडजस्टमेंट मिलता जाए, ऐड वाला ऐड में लिखो, लेस वाला लेस में लिखो, लेकिन एग्जाम में प्रेजेंट करते समय वो हॉच पॉच नहीं हो कि ऊपर कहीं ऐड दिख रहा है कहीं लेस दिख रहा है, इट शुड बी सिस्टमैटिक। अनरिकॉर्डेड सैलरी आ गई यहाँ पर हमारी, है ना। देन नेक्स्ट व्हाट इज टू बी डिसअलाउड, डेप्रिसिएशन अलाउ इन बुक्स is to be added back। Then you have SGST penalty that has to be added back। all these things would be added। I guess इतना ही है डिसअलाउंस में, एक बार अपन क्रॉस चेक कर देते हैं। कमीशन पेड हो गया हमारा,
देन सैलरी हमने हटा दी, बैंक लोन, एसजीएसटी पेनल्टी हो गया, डेप्रिसिएशन। अब लेस क्या करना है, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखो, दो चीजें माइनस होती हैं, एक एक्सपेंडिचर्स अलाउड, दूसरा इनकम्स नॉट टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी। तो एक्सपेंडिचर्स अलाउड में आ जाएगा, डेप्रिसिएशन अलाउेबल, वर्किंग नोट दिखा दो, उसका जो भी फिगर है वो यहाँ पर लिख दो। नेक्स्ट इज इनकम्स, एग्रीकल्चरल इनकम और आपका डिविडेंड इनकम, ये दोनों चीजें हमने यहाँ से हटा दी। और कोई चीज दिख रही है, एक बार फाइनल कैलकुलेशन के पहले फटाफट से पूरा क्वेश्चन गो थ्रू कर लें। ये हमने कंसिडर कर लिया, ये कंसिडर कर लिया, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था, मैन्युफैक्चरिंग में एडजस्टमेंट है बट दैट डज नॉट रिक्वायर एनी डिसअलाउंस। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हमने देख लिए, ये हो गया, ये हो गया, general expenses, interest unpaid or depreciation. So all the adjustments have been given. Let us also check from the solution. Have we missed anything? No, this is done, this is done, dividend is done, depreciation. So this is your income under the head PGBP. Okay, अब हाउस प्रॉपर्टी में इन्होंने सिंपल सा ही दिया है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, प्रिंसिपल रिपेमेंट तो तुम्हारा उसमें जाएगा, एटीसी में जाएगा। यहाँ पर उन्होंने बोला है हाउसिंग लोन एंड इंटरेस्ट वॉज 23,000, तो हाउस प्रॉपर्टी में 23,000 का नेगेटिव आ जाएगा बस, बैलेंस। एंड डिविडेंड अगेन दे हैव गिवन, हैव दे रिटन ग्रॉस और नेट डिविडेंड? ठीक है, कुछ लिखा नहीं है तो लेट अस अज्यूम इट टू बी ग्रॉस। अगर यहाँ पर लिखा होता नेट तो फिर आप इस पे टीडीएस का रिवर्स एडजस्टमेंट देते हैं ना। तो डिविडेंड आ गया अदर सोर्सेज में, सब चीजों को ऐड करके तुम्हारी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई, एटीसी से हमने ये माइनस कर दिया एंड वी गेट योर टोटल इनकम। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ अगेन कीप इन माइंड, इट इज पॉसिबल कि हम कोई चीज मिस करें, दैट इज एन एग्जाम, इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो ये जरूरी नहीं है, कोशिश हमें पूरी करनी है, बट इट इज ओके इफ वी मिस समथिंग, इफ कोई चीज भूल जाए। बट यू नो आपके दिमाग में जब एक फॉर्मेट होता है कि हमें किस स्टेप में प्रोसीड करना है, तो आप भूलने के चांसेस जो है, प्रोबेबिलिटी है, वो कम करते हो। तो क्या किया हमने, जस्ट आई गिव यू क्विक रिकैप ऑफ दिस थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, read the question very carefully. Okay, every adjustment, every word has to be read very very carefully. ट्राई टू रिवाइज द प्रोविजन फटाक से कि 43 में क्या था, हाँ ये था ये था ये था, ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट में क्या होगा, अलाउ होगा कि डिसअलाउ होगा, वो सोच लो। फिर अगले एडजस्टमेंट पे आओ, अलाउ होगा कि डिसअलाउ होगा, सोच लो, फिर अगले एडजस्टमेंट पे आओ। इस तरीके से अपने दिमाग में सारे एडजस्टमेंट्स को पहले बिठा लो, सॉल्व करने से पहले फटाफट से, ठीक है, एक 2 से 5 मिनट लगेंगे। देन आफ्टर दैट you go to the P&L. Now out of the P&L, identify which items need consideration, like put a mark or just some kind of mark, very small point or dot, something that this has to be checked. Okay, then start solving, prepare a format, ऐड वाली चीजें ऐड में, लेस वाली चीजें लेस में, जहां जहां पर आपको एक्स्ट्रा लिखना पड़ रहा है, कैलकुलेशन देनी पड़ रही है, गो टू अ वर्किंग नोट, डोंट डू इट इन दैट। आपको भी समझने में दिक्कत आएगी, चेक करने वाले को भी समझने में दिक्कत आएगी। आफ्टर यू हैव कैलकुलेटेड, जस्ट गो थ्रू द P&L वंस मोर, कुछ छूट तो नहीं गया, रीड द एडजस्टमेंट वंस मोर, कुछ छूटा तो नहीं है, एंड देन कंप्यूट पीजीबीपी। हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, दीज आर कंपैरेटिवली सिंपलर बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा हमें फॉर्मेट का ध्यान नहीं देना पड़ा इस क्वेश्चन में। एंड देन डिडक्शन में एक ही था, अगर कोई और डिडक्शन है तो वो हम टोटल इनकम के क्वेश्चंस में अलग से एक वीडियो शेयर करूंगी। देन यू डिडक्ट इट, if total income is asked, question is done. If there is for tax calculation, तो फिर आगे हम tax calculation करेंगे। Okay, so try to solve these questions in a manner, and then if you have any doubt, obviously you can reach out to me, and you will be, you yourself will feel that there is a very big change which you observe in your method of solving। क्योंकि हम जो चीजें भूल जाते हैं ना, हम छूट जाती है हमसे चीजें, वो नहीं होंगी अगर हम एक सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करेंगे। सो प्रैक्टिस अ लॉट बिकॉज दिस इज द दीज आर सम लास्ट टाइम्स बिफोर योर एग्जामिनेशन। नाउ आई एम श्योर आप लोग प्रोविजन सारे पढ़ चुके हो, पर दिक्कतें यही है सारी कि अब क्या करें, प्रोविजंस तो आते हैं बट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं सॉल्व हो पाता वाला जो प्रॉब्लम होता है। सो ट्राई टू फोकस ऑन ऑल दीज छोटा छोटा पॉइंट्स, and even after this if you have any issues, feel free to contact. All the very best.